Hello students, in our previous video we have seen sources of food that are plants and animals, then different types of animals depending on their food habits, that is carnivorous, omnivorous and herbivores. Then we also seen the decomposers and scavengers which decompose the dead and decaying animals in the soil. So now we are going to learn about food chain and food problems. So firstly, what is food chain? Students, you all know that the ultimate source of energy for us is sun. sun से हमें energy मिलती है, but we cannot utilize this energy directly. But the plants, they can utilize this energy for the process of food synthesis, means photosynthesis. प्लांट्स क्या करते हैं, ये जो सोलर एनर्जी है तो उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, मीन्स कि वो सोलर एनर्जी को यूज करके फूड सिंथेसाइज करते हैं, फूड बनाते हैं, एंड देन दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय अस, मीन्स दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय अस विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स. एंड द प्लांट्स दे आर द ओनली प्रोड्यूसर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. सिर्फ प्लांट्स ही है जो कि फूड प्रोडक्शन करते हैं. And that's why all the herbivores or carnivores, they are directly or indirectly depending on the plants. So how carnivores they are depending on plants? क्योंकि carnivores तो plants नहीं खाते, वो तो animals खाते. But for example plants उन्होंने food बनाया. Then herbivores क्या करते? Herbivores they eat plants और प्लांट प्रोडक्ट. हर्बीवोर्स जो है प्लांट्स खाते हैं या प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं. देन कार्निवोर्स दे ईट हर्बीवोर्स. कार्निवोर्स क्या करते हैं? हर्बीवोर्स को खाते हैं. एंड देन कार्निवोर्स दे आर डिकम्पोज बाय डिकम्पोजर्स. जब कार्निवोर्स की डेथ होती तो वो डिकम्पोज होते डिकम्पोजर से, मीन्स डिकम्पोजर्स उनको खाते. मीन्स ऑल द एनिमल्स दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स. वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पे, क्योंकि अगर हर्बीवोर्स ने प्लांट्स नहीं खाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए हर्बीवोर्स नहीं मिलेंगे. And then decomposers, they are also depending on the dead and decaying animals. So these all the animals, they are linked with each other for their food. Food के लिए एक दूसरे के साथ हर एक एनिमल और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लिंक्ड है, एंड दिस लिंकिंग इट इज कॉल्ड फूड चेन. So we will see the definition of food chain. Food chain is a series of living organisms that are linked with each other for food. It's called food chain. What is food chain? A series of living organisms that are linked with each other for food is called food chain. कि हर जो ऑर्गेनिजम्स है तो वो एक दूसरे के साथ लिंक है इन अ सीरीज, एंड व्हाई दे आर लिंक्ड? फॉर द फूड, फॉर नीड ऑफ फूड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फूड चेन. दिस इज अ चेन. सो आपको ये डायग्राम में अभी दिख रहा होगा कि plants, they are the source of food. Then plants, they are eaten by the grasshopper. Grasshopper, it is eaten by the
frog. Then frog is eaten by snake, and snake is eaten by eagle. And when eagle is being dead, और जब वो मरता है तो उसको decomposers eat करते. So all these animals, they are linked with each other for their food, for their requirement of the food. This is called the food chain. And इसमें से अगर एक भी लिंक नहीं होगी तो दूसरे जो एनिमल्स है तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. जैसे कि प्लांट्स है तो प्लांट्स उन पे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी डिपेंड है. बट अगर जैसे ग्रास हॉपर नहीं होगा, ग्रास हॉपर प्लांट नहीं खाएगा तो क्या होगा कि फ्रॉग्स को भी इंसेक्ट्स नहीं मिलेगी. अगर फ्रॉग नहीं होगा तो फिर स्नेक्स को भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा. तो ऐसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म जो है तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है फॉर द नीड ऑफ देयर फूड. दिस इज ऑल अबाउट फूड चेन. देन द सेकंड टॉपिक इज फूड प्रॉब्लम्स. सो व्हाई देयर आर फूड प्रॉब्लम्स एंड in our country there is a large problem, there are large problems related to the food. But why? There are two reasons. There are two reasons of food problem in our India. You know that our India, it is a vast country. We have second largest population in the world, and our population is growing rapidly day by day. हमारी population जो है तो वो बहुत fast grow हो रही है. But according to the population के साथ हमारा जो food production है तो वो increase नहीं हो रहा. जितनी population rapidly increase हो रही उतना हमारा food production जो है तो वो नहीं है. And that's why हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फूड है, फूड की कमी है और पीपल्स बहुत ज़्यादा है. तो इसीलिए हर एक पर्सन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलता है. व्हाई? फर्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ फूड. वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ फूड बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन. देन सेकंड रीजन इज poverty. Because of the lack of money they cannot buy sufficient amount of food. कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास पैसे ही नहीं होते हैं कि वो sufficient amount of food जो है तो वो खरीद सके. तो these are the two reasons कि shortage of food है, peoples बहुत ज़्यादा है, population ज़्यादा है और food का जो production है वो कम है. एंड दूसरा की poverty, की कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो खरीद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड जो है मनी पैसे की कमी की वजह से खरीद ही नहीं. सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स इन अवर इंडिया. नाउ हाउ कैन वी अवॉइड और हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम्स? क्या कर सकते हैं हम ये प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए? सो फर्स्ट इज दैट वी शुड ग्रो मोर फूड और वी शुड कल्टिवेट मोर अमाउंट ऑफ फूड. हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहिए. तो फिर शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं होगा और हर एक पर्सन को हम सफिशिएंट अमाउंट में फूड प्रोवाइड कर सकते हैं. देन सेकंड इज वी शुड नॉट वेस्ट फूड. कि हमें जितना फूड चाहिए हमने उतना ही यूज़ करना चाहिए. जैसे कि आप घर पे खाना खाते हो तो आपको जितनी भूख है, जितना आप खा सकते हो उतना ही अपने प्लेट में लेना चाहिए और उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. अगर वो फूड वेस्ट नहीं हुआ तो वही फूड हमें दूसरे पर्सन्स को देने के लिए काम आ सकता है. थर्ड इज वी शुड स्टोर ऑल द फूड दैट इज ग्रेन्स और क्रॉप्स प्रॉपरली. क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने फूड को अच्छे से स्टोर करके नहीं रखा सो उन पे इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स या रैट्स तो उनको खा लेंगे एंड वो वेस्ट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी शुड स्टोर फूड प्रॉपरली सो वो वेस्ट नहीं होगा. सो ऐसे हम फूड प्रॉब्लम्स जो है तो वो थोड़े से कम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर सोर्सेस ऑफ फूड. यहाँ पे आपका चैप्टर जो है तो वो एंड हो गया है एंड अभी ये चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज है तो वो सॉल्व